Good evening, Namaskar, and hello everyone. This is again, I'm joining on my Instagram live series, sharing life secrets with Soumya. I think there is some connection issues going on, so we are trying to resolve it. So I'm just waiting for my special guest. So today, my special guest is my mom from India. She is an obstetric gynecologist specialist, and she's an amazing inspirational icon. And I'm so excited to have her because I always bring the amazing inspirational people. I think I'm just waiting for her the connection. As soon as, yes, I can see, I'm waiting for my mom to join me. Hi, mom, I sent you a request. You can join me on. We're going to have a live chat with you with amazing viewers and the followers who are currently watching us live. So there could be a network issue nowadays a lot because you see, like in South Africa, sometimes the earthquake comes, sometimes it's Wi-Fi issue. So I'm just waiting for my mom to join me. I think definitely some connection issues going on. I'm good. Yadav ji, I hope you're also okay. Thank you so much for joining me live on Instagram. I'm just waiting for my special guest to join me because I think there is some connection issues going on. So let me try if I can join again. I sent a request. I'm waiting to accept my request. I think it's connecting. Yes. So finally I'm connected. So hi, mom. Hi, how are Thank you you? so much. I'm good. Thank you so much for joining me on my Instagram IG live series, sharing life secrets with Soumya, all the way from India. तो मैं बहुत excited हूँ because I Me have you too. on my IG series. Yeah, me too. How are you? Are you fine today? I heard that you had earthquake at your town. Yeah, I think in South Africa, a lot of things are happening. Earthquakes, snow. I don't know what's happening. Maybe it's a mother nature. But before I start with you, I would like to give a short introduction about you to everyone. So hello, everyone who watching us currently live. She's my beautiful mom. She's a reason behind my success. She's an obstetric gynecologist specialist from India, owner of Saurabh Nursing Home. And today she's going to share some amazing secret tips. मम्मी मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी हमारे फैंस फॉलोअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है जो हमें करेंटली लाइव वॉच कर रहे हैं आप प्लीज उन सबको एक हेलो वेव कीजिए देन वी कैन Hi, स्टार्ट hello. ओके मम्मी सो आप रेडी हो मैं आपके सामने कुछ ऑथेंटिक क्वेश्चंस रखने वाली हूँ आर यू रेडी फॉर दैट First of all, before your questions, I want to wish you a very, very, very happy Daughter's Day. It is Daughter's Day in India. यस थैंक यू मुझे पता है कि मैं आपके विश का ही वेट करी थी थैंक यू सो मच एंड मम्मी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं हमेशा बहुत स्पेशल गेस्ट को लेके आती हूँ बट यू नो योर माई लाइफ एंड आई थिंक we definitely gonna get some game changer stories from you but thank you so much for your lovely wishes I really miss you and I can hope to see you soon in India Yeah. okay ma'am so let's start so मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है why you do what you do define life in your way Define life in my way. yes So my first answer is अपने अंदर का बच्चा तो जिंदा रहने दो जरा चेहरे की मासूमियत ताउम्र नहीं जाएगी सो always enjoy every happy moment whatever situation you are whether in stressful situation or any happy condition or good condition or bad condition but even if for a half minute life is giving a reason to laugh and enjoy it एंड खुशियां बहुत बड़ी बड़ी चीजों में नहीं है बहुत छोटी छोटी चीजों में खुशियां हैं सुबह बैठती हूँ मैं बाहर चाय के लिए बगीचे में तो मैं देखती हूँ एक चिड़िया आती है ऐसे झाड़ पर से पहले आइडिया लेती है कि सब सेफ हूँ मैं उसके बाद आएगी फुर्र से उड़ के जाएगी फिर एक झाड़ पे बैठेगी फिर उसके बाद एक घास का तिनका तोड़ेगी फिर पहले एसेस करेगी अपनी सेफ्टी और फुर्र से उड़ के जाएगी झाड़ पे और अपना घोंसला सजाएगी उसमें भी खुशी मिलती है तितली दिखती है बहुत दिनों बाद उसमें भी खुशी मिलती है बारिश में अगर हम कहीं फंस गए हैं रास्ते में एक ऐसे छोटे से टपरे के नीचे खड़े हैं एक खंबे को पकड़ के और टप 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 पानी सामने गिर रहा है और हम वेट कर रहे हैं बारिश रुके लेकिन हम चाह रहे हैं गिरती रहे वो भी एक खुशी है तो खुशी के लिए कोई बड़ी बड़ी चीजें बड़े बड़े महल बड़ी बड़ी नहीं चाहिए आपको जो अच्छा लगता है आप जिसको एंजॉय करते हो
उसमें ही खुशी ढूंढ लो। एक तो मेरा ये मोटो है लाइफ का। दूसरा मेरा मोटो ये है, और मुझे एक चीज ये है कि मुझे शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं है। वॉट एवर यू हैव, it Hmm. is for you Yeah. enjoy it, Yeah. and be contented in whatever you have. Second thing, third thing is that always love and show gratitude. Show your Hmm. love, show your gratitude. Yeah. It spreads happiness amongst all. और फिर मेरा कहना है कि किसी बात से डिसएग्रीमेंट है, गुस्सा करना है, जम के कर लो, फिर प्यार भी जम के कर लो। तो ये मेरा तो लाइफ का मोटो है। अब तुम पूछोगे व्हाट आई डू एंड व्हाई आई डू। Yes. So I have so many, there is a long list of what I do, why I do. It started from my childhood up to the admission of medical college, when it was finalized that now I am a doctor. Yeah. When I was child, I was actually I am having so many hobbies. I loved to make the dolls, so I made many dolls with this paper mesh. And at that time, I used to think that I will make so many dolls and I will sell in the market. और हम लोग छोटे छोटे थे तब हम लोग छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया बना के उसकी शादियां भी करते थे, बारात भी निकालते थे, इतनी छोटी छोटी मिट्टी के बर्तन बना के, और उस पे छोटे छोटे बर्तनों के सेट पे खाना बनाते थे। तो उस समय मैं सोचती थी कि मैं गुड़िया का बाजार व्यापार करूंगी। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे ना ड्रेस कॉस्ट्यूम्स बहुत सुंदर सुंदर बनाने का शौक हुआ। तुमको शायद मैंने बताया होगा या तुम्हें नहीं मालूम होगा, मैं अपने स्कूल एज से मेडिकल कॉलेज एज तक अपने खुद के कॉस्ट्यूम खुद बनाती थी। और उसको बनाती थी तो अड़ोस पड़ोस की जो आंटियां होती थी वो कहती थी कि अरे बहुत अच्छा बनाया है तुमने, बहुत अच्छी डिजाइन बनाई है। और वो अपनी बच्चियों को भी बोलती थी कि देखो तुम लोग भी सीखो और अच्छा अच्छा बनाया करो। इवन मेडिकल कॉलेज में भी मेरे कुर्ते साड़ीज वगैरह मैं खुद एम्ब्रॉयडर करती थी और पेंट करती थी। तो लोग मेरे को, इवन मेरी जो मैडम होती थी, मेरी टीचर्स होती थी, वो भी मुझे बुला के पूछती थी दिखाओ, क्योंकि वो मार्केट में मिलता नहीं था, वो मेरा ओरिजिनली क्रिएटेड था। तो उस समय मैं सोचती थी कि मैं ना बुटीक खोलूंगी। फिर थोड़े दिनों बाद फिर चेंज हुआ, फिर मैंने सोचा कि अरे मेरे को ना, मुझे छोटे अलग अलग प्लॉट्स में घर के अलग अलग डिजाइन बनाना बहुत पसंद है, कि ऐसा कमरा, इसमें यहाँ से सीढ़ी, ऐसा करेंगे। तो उस समय मैंने बहुत सारे नक्शे बनाए थे। आई मेड मैनी मैप्स ऑफ डिजाइन ऑफ होम्स। At that time, I used to think to become interior designer, but at that time, 60 years ago, interior designing, this architecture and this boutique was not in fashion. So I could not do that. Then ultimately, till I decided to become a doctor, I passed through many phases, many choices, and ultimately I became doctor. And I became a doctor because there is a story behind it. My mother was sick for a long time, so I used to take her to the doctors. हमने बहुत सारे डॉक्टर्स बदले, कहीं से रिलीफ नहीं मिला। अल्टीमेटली एक डॉक्टर के पास जाके हमें रिलीफ मिला। फिर हमको एक होप जगी कि हम अच्छे हो जाएंगी। मेरी मदर जब मैं 8th क्लास में थी तब से लेके मैं जब कॉलेज में गई तब तक मेरी मदर बहुत सिक रही। और उस दौरान हम बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए। फिर जो डॉक्टर जिससे रिलीफ मिला था, 5-6 महीने में उनको काफी रिलीफ मिलने लगा और हम लोग होपफुल हो गए कि नाउ शी विल रिकवर। तब हम सडनली एक दिन हम उनके पास जब दिखाने गए तब हमें पता चला कि वो डॉक्टर जो है उनकी डेथ हो गई है। तो उस दिन जो एक वैकेंसी बोलो या एक खालीपन, एक ग्रीफ की हमारा एक रिसोर्ट माने एक रिसोर्स चला गया, जो हमें क्योर कर रहा था वो चला गया। उस दिन मैंने मेडिसिन की अहमियत और एक पेशेंट के लिए डॉक्टर की वैल्यू को बहुत करीब से महसूस किया। और फिर जब उस समय थोड़े बड़े हो गए थे, कॉलेज जाने लगे थे, तो रास्ते में मेडिकल कॉलेज के व्हाइट एप्रन पहने हुए बच्चे मिलते थे, तो वो भी एक फैसिनेटिंग चीज थी। सो इस कारण से फिर मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और उसके बाद फिर तो मेरी मेडिकल की हिस्ट्री है ही अभी। You know, मम्मी, this thing मुझे भी नहीं पता था जो आपने अभी बताया। Like it's such a beautiful journey. I think मैं हमेशा एक चीज पे बहुत फोकस डालती हूँ, that is all about authenticity. और वो सब मैंने आपसे ही सीखा है, like being original, stay true to yourself, you know, fight for your rights, achieve the success, but in a good way.
तो लाइक एवरीथिंग मैंने जो कुछ भी सीखा आपसे सीखा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप बिजनेस वुमेन हो, आप इतना बड़ा हॉस्पिटल रन करते हो, आपको पूरे स्टाफ को मैनेज करना होता है, आपको हमें मैनेज करना होता है, आपको अपने फैमिली को देखना होता है, अपार्ट फ्रॉम आपका हॉस्पिटल रनिंग, आप सर्जन हो बेसिकली, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी। आपको पता है कि आपका जॉब बहुत डिमांडिंग है, 24 आवर्स आपको यू हैव टू रन योर बिजनेस। उसके अलावा भी आप समय निकालते हो डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि मेरे जितने भी आउटफिट्स हैं जो मैं पहनती हूँ, इट वॉज ऑल डिजाइन बाय यू। सो टेल It मी, was my हाउ passion. It was my passion since my childhood. आई मस्ट से दैट आई थिंक आपकी जो भी डिजाइनिंग है वो बहुत एक्सक्लूसिव है। सो टेल मी समथिंग, आप कैसे मैनेज करते हो मल्टीटास्किंग वर्क इन योर लाइफ? लाइक यू आर टैलेंटेड एंड यू आर बेस्ड इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। आप कैसे मैनेज करते हो इतना सारा? कैसे इतने बिजी होने के बावजूद अपनी स्वयं की हॉबीज को या पैशन के लिए समय निकालते हो? आप कोई गेम चेंजर मोमेंट शेयर कर सकते हो विच चेंज कंप्लीटली योर लाइफ? These are two different questions. या Game changer moments are different, and how I manage my hospital, that is different. या How I manage my hospital is my profession that I enjoy. That and my life is my life. So I take out some time and keep some time for me, for myself, for my hobbies. And by God grace, I have a good team of workers with me. Just I have to monitor them and administer them. And my father told me about the discipline and value of doing the things in time and keep the things in properly arranged way. So या you are not losing your time in searching out the things. या So usually I try to keep the things in that place or one place only. That is first. Second, I get up early in the morning to cope up with all the timings. So I am not late for my work, or I may not missing my hobbies. This is my passion. So after coming from hospital, even if I am tired, this gives me freshness. And talking to you is always happiness for me. या So in this way, I manage that. If you like to do, you can do. ना करने के 100 बहाने हैं, और अगर करना चाहो तो 10 रास्ते हैं। ये वेरी ट्रू। फिर दूसरा तुमने पूछा कि गेम चेंजर मोमेंट्स। गेम चेंजर मेरे लाइफ में 3 आए, 3 मोमेंट्स। फर्स्ट मोमेंट गेम चेंजर तो मैंने भी बताया कि मैं कैसे गुड़िया बनाने से लेके आर्किटेक्ट से लेके कॉस्ट्यूम डिजाइनर से लेके अंत में डॉक्टर पे पहुंच गई। फर्स्ट गेम चेंजर मोमेंट वो था। फिर सेकंड गेम चेंजर जिसने मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनाया, वो था मेरा इंटर्नशिप पीरियड का टाइम, जब मैं व्हेन आई वाज डूइंग इंटर्नशिप, एट दैट टाइम आई वाज एंगेज्ड टू योर फादर। तो मेरी सगाई हो चुकी थी डॉक्टर तिवारी से। तो मेरा पैशन था मेडिसिन के लिए, एमडी मेडिसिन मैंने सोचा था, मेरे को चूज करना था सब्जेक्ट में। तो मैंने सोचा कि मैं एमडी मेडिसिन चूज करूंगी। पर पापा को फोन किया तो पापा ने बोला कि नहीं, तुम लेडी डॉक्टर हो, तुम्हें लेडी पेशेंट्स को ही डील ज्यादा करना पड़ेगा। मैं तो खुद एमडी मेडिसिन हूँ, जहां मेरी जरूरत होगी मैं सर्विस दे दूंगा, बट उनको जो एज ए लेडी जो हेल्प चाहिए वो तुम कर पाओगी, इसलिए तुम गायनेकोलॉजी चुनो। और तुम्हारी तरह ही मैं भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहती थी। बट फिर इनके कहने से मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ले लेती हूँ। लेकिन अब वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि एवरी डे मैं लाइफ की स्माइल देखती हूँ, 9 महीने उनकी जर्नी देखती हूँ, उनसे अंदर बात करती हूँ, हाय हेलो करती हूँ सोनोग्राफी के थ्रू, और अब मैं एंजॉय करती हूँ। I think आप एक नई what must I say, you give new life to a mother. I think that is the biggest thing of your profession. Yes. I just wanted to know, you know, आजकल की दुनिया इतनी materialistic है, इतना competitive world है. What do you Yes. think about this? Like, आपको क्या लगता है, आपका सबसे बड़ा competition कौन है? How do you feel about it? दुनिया बहुत कंपटीशन से भरी हुई है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं हर लेवल पे,
पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोशल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे। बट सही कहूँ तो मैं किसी से कॉम्पीट नहीं करती। मैं जैसी हूँ वैसे जीना चाहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ, और जो मैं करती हूँ वो अपनी ओर से उसको उसके बेस्ट वे में करने की कोशिश करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में भी मुझे कभी इस बात के लिए कभी सोच नहीं आई कि मेरे फलान पड़ोसी डॉक्टर के यहाँ इतने पेशेंट्स हैं कि उसके यहाँ इतने हैं। मेरे पास अगर मान लो 5 भी हैं कि 10 भी हैं कि 50 भी हैं, जितने भी हैं उनके लिए जो मैं बेस्ट वे मेरे एफर्ट डाल सकती हूँ वो मैं डालती हूँ। बाकी उन्हें पसंद आना नहीं पसंद आना एक अलग बात है, पर मेरी तरफ से मैं ऑनेस्टी से बेस्ट एफर्ट डालती हूँ। और मैं अपनी खुद से कंपटीशन करती हूँ कि कल को मेरे पास ऐसा था तो आज मेरा जो परफॉर्मेंस है कल से आज बेटर हो, आज और बेटर हो। कोशिश करते हैं कि हम सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकें, या जो भी वर्क कर रहे हैं उसको परफेक्शन में कर सकें, एक्सीलेंस में कर सकें, कि मतलब खुद को भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। No, very true. I think ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल लोग इतना ज्यादा बिजी है कि वो सिर्फ एक कंपटीशन में लगे हुए हैं और एक नॉर्मल जिंदगी को जीना भूल गए हैं। नहीं, कंपटीशन गिव्स ए कांस्टेंट nagging in your mind and dissatisfaction of life. And satisfaction and happiness is not in competing with others and always remaining in tension that, oh, I am having less patient, or oh, I am having more patients, I have to maintain this level. No, I live every day in today only, and उसको जैसा दिन आता है उसको वैसा जीती हूँ। Yeah. जितना मतलब मैं मैक्सिमम एफर्ट कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ, और मैं खुश हूँ कि मुझे पेशेंट्स मेरे चाहते हैं, और बहुत दूर दूर से बहुत बहुत लोगों को छोड़कर मुझ तक आते हैं। तो मुझे भगवान ने चुना है कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। आप मुझे एक और बात बताइए, मैं स्पेशली ये अपने सारे स्पेशल गेस्ट से पूछती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए कि आजकल की जो अपकमिंग जनरेशन है, जो यंग यूथ है, वो क्विकली फेम पाने के लिए या पब्लिसिटी पाने के लिए कई लोग अपना एजुकेशन छोड़ देते हैं, या फिर कई लोग शॉर्टकट रूट ले लेते हैं, एंड लेटर इन देयर लाइफ वो रियलाइज करते हैं कि एजुकेशन बहुत बड़ी बात होती है, बट समय हाथ से निकल चुका होता है। बिकॉज आपने भी मुझे सिखाया, मेरा भी मानना है कि एजुकेशन इज अ पावरफुल, इफ यू वांट टू बी पावरफुल यू नीड टू बी एजुकेटेड। तो आप आजकल के यंग यूथ को क्या एडवाइस देंगे कि वो किस हिसाब से अपना सही करियर चुने, या लाइमलाइट और ग्लिट्स ग्लैमर की दुनिया में एकदम से अपने आप को ना खोए कि उनकी पूरी दुनिया भी डैमेज हो सकती है। सो व्हाट आर योर व्यूज, व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव? फर्स्ट मैसेज इज कि फर्स्ट एंजॉय योर एवरी मोमेंट, है ना। लाइफ, योर टाइम इज लिमिटेड, योर लाइफ इज लिमिटेड, लिव योर ओन लाइफ, don't try to live others life. Yeah. Then dream big. It is not bad to dream big, but for it, if you want to start, you with the smallest thing you start ना। Yeah. ये नहीं कि ये नौकरी बड़ी नहीं है, ये नौकरी छोटी है, ये करेंगे हम, ये नहीं करेंगे, and don't do like that. Whatever opportunity you are getting, you take it. You start with smallest. Many small will build a big leap. Yeah. And this third thing, be confident and chase your passion. Do whatever gives you satisfaction and happiness. Then only you will do justice to your profession. It is not a work that it is small or it is big or any sort of work. आप उसको जितने परफेक्शन से करेंगे और आपका वे ऑफ परफॉर्मेंस और आपकी सिंसियरिटी वो जो होगी वो आपको पे करेगी। जैसे Very सपोज true. एग्जाम्पल के लिए, मिस्टर मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, and now Yeah. he is one of an exclusive person in the world. Yeah. But he was from a very low middle class family. At that time also he was of a strong character,
He was a very strong person. He used to read many books. He did sadhana also. He did meditation also. Spiritually, he is also uplifted. And then in his later life, he was a RSS worker. As a RSS worker also, he performed the given task to him excellently, to the perfection, from cleaning the office to managing the files or the groundwork. He did very well. It uplifted him. His way of working, his passion for work and his devotion for work uplifted him. He became CM of the Gujarat. Yeah. And as a CM also, he was a down to earth person. He believes in teamwork and he motivates every person in his team to work hard. And he performed well as CM in Gujarat. So he was given opportunity to become a prime minister. And as a prime Yeah. minister also, his way of working is making him a leading man. So step by step, Yeah. it came here. Same way. Don't be in haste. Then you should not undermine yourself. You should not undermine yourself, because you should have confidence in you, and you should try to achieve the success in a humble way. Confident doesn't mean attitude or arrogancy or disrespect to any of your surrounding. And save some money for your rainy days. Make some distance from social media, or fix some time for that also in your life. If you think you are hiding anything from your parents or from your friends, you need to hide it, means it is a wrong thing. Yeah. Don't do that. Don't do that. But if by ignorance or by any situation, if you have done wrong, always confide in your parents. Tell them, only they will help you and they will take out of it. So Yeah. you have to be in relation with your parents. You have to be confident in yourself. I say to one MR came in my room. He was very conscious. Madam, this product does that. I'm having first day. So I may made mistake. मैंने कहा, listen, I don't know it is your first day. Nobody knows it is your first day. Don't mug up and don't read from the chart. Just whatever you think you are remembering, you can tell me 2 products only today. If you have forgotten third, no problem. You can remind me next time. But be confident. Show your body gesture confident. You will impress more and you will get your business more. So in I that way. think, yeah. आई थिंक मम्मी ये जो आपने बात बताई है द कॉन्फिडेंस, इसको कई लोग नहीं समझ पाते हैं. सम पीपल थिंक इट्स एरोगेंसी, सम पीपल लाइक फॉर मी कॉन्फिडेंस इज अ स्ट्रेंथ. दैट्स हाउ आई ग्रो अप. जैसे आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया है कि लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आई कैन फेस इट. सो आई थिंक बिकॉज ये चीजें आपसे आ रही है, सो आई एम श्योर इट गोना बी वेरी इम्पैक्टफुल जो भी हमें सुन रहे हैं या जो भी हमें लेटर ऑन देखेंगे. Thank you for sharing these things. I think this is one of the very inspirational thing you're teaching us, and I'm getting my lessons more and more. So thank you for that. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, टच वुड विद गॉड ग्रेसिंग एंड ऑल, आज आप एक सक्सेसफुल वुमेन हो. आज आपने अपना नाम बिल्ड किया है. आप अपने पेशेंट्स को बेस्ट सर्विसेज देते हो. आप हम सबको बेस्ट लाइफ देते हो. आई मीन अपार्ट फ्रॉम अ प्रोफेशनल लेडी, यू आर जस्ट अ ब्यूटिफुल सोल इनसाइड आउट. आप इतने स्पिरिचुअल हो. जब आपको लगता है कि आप देखिए, जिंदगी में जो इंसान सक्सेसफुल होता है उसके पास ही अक्सर लोग आते हैं. अगर आपको पता है कि आपके पास लोग आ रहे हैं क्योंकि आप पावरफुल हो, वो आपके कनेक्शंस को यूज करना चाहते हैं या आपको यूज करना चाहते हैं, इस टाइप के लोगों के बारे में आपकी क्या व्यूज है? ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, और यूजुअली आजकल की दुनिया तो ऐसी ही है. आपके पास जो आए हैं वो यूजुअली मोर देन 50% अपने मतलब से आएंगे.
तो उसके लिए सबसे पहला तो मैंने ये किया हुआ है कि जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, यंग एज के, मेरे यूथ के, उस समय के, क्योंकि ह्यूमैनिटी, लव, रिलेशनशिप ग्रेजुअली डिटेरियोरेट हो रही है। उस समय के जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो बहुत लॉयल हैं, हम सदा उनके कांटेक्ट में रहते हैं, और उस मेरे ट्रेजर को मैंने संभाल के रखा हुआ है। भले हमारे 2 हो या 1 हो या 3 हो, बट जो 3 हमारे वैल्यूएबल है ना, उनको किसी भी कॉस्ट पे हम ट्रेजर करके रखेंगे। और इस तरह के लोग आते हैं तो नेचुरली हम भी ह्यूमन बीइंग है, तो हमको भी फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन होता है, मालूम होता है ये इसलिए आया है। मैं अपने आप को उतना ही यूज होने देना अलाउ करती हूँ जितना मुझे लगता है फीजिबल है, या अगर इसमें रियली उनकी हेल्प हो रही है, भले वो कनिंग हो, रियली हेल्प हो रही है, या मेरे थ्रू वो किसी की हेल्प कर रहे हैं, सो मैं उतना यूज होने देती हूँ। बट मुझे लगता है कि ये कनिंगनेस है या ये मुझे हार्म हो सकता है, तो मैंने अभी कुछ सालों पहले एक पढ़ा था कहीं कि आप NO, कैपिटल N कैपिटल O, नो बोलना भी सीखो। तो वो मैंने बहुत देर से सीखा, पर सीख लिया है। तो मेरा सोचना है कि बिटर रिलेशन से बेटर है कि नो अपने आप को एक डिस्टेंस बना लूं। एक बार नो बोलूंगी, हो सकता है उन्हें बुरा लगे, हो सकता है वो रिलेशन कंटिन्यू करें, हो सकता है वो डिसकंटिन्यू करें, पर एक ऐसे स्ट्रेसफुल रिलेशन से बेटर है नो रिलेशन। और दूसरा, मैं ना कार्मिक साइकिल में बिलीव करती हूँ। अभी उसमें ये है कि हमारा जो हमने जो कर्म किया है, वो हमारी बॉडी के अंदर चक्रास होते हैं, उन चक्रास में हमारे जो किए हुए काम है वो इम्प्रिंट होते हैं। और जो मैंने किया वो मेरे साथ है, जो उनने किया वो उनके साथ है, तो वो उनका कार्मिक अकाउंट है। उसके बाद एक बार अगर वो पर्सन कर लेता है, उस समय तो फील होता है, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ नैग नहीं होने देती, ठक ठक नहीं होने देती, क्योंकि मुझे किसी के साथ भी इमोशनल बॉन्डिंग, चाहे वो इल फीलिंग हो या गुड फीलिंग हो या लव फीलिंग हो, वो मुझे न्यूट्रल रखना है, उसको कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि मैं रीबर्थ में बिलीव करती हूँ। और फिर अगर हमारे कार्मिक अकाउंट और इमोशनल बॉन्डिंग हम लेके, ये एक एनर्जी फॉर्म में हमारे साथ जाते हैं, तो फिर हम पे बैक, रीपे बैक करते हैं, और बर्थ रीबर्थ करते हैं। तो उससे उसको अवॉइड करने के लिए अभी मेरा ये इसलिए मैं वाओ, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आपकी ये बहुत यूनिक। हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए। इसी वजह से मैंने अभी बताया, हाँ मैंने यही बताया कि मैं या तो उनको हेल्प जितना कर सकती हूँ करती हूँ, या फिर नो बोलती हूँ और एक डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ। आई थिंक आपकी जो ये यूनिक क्वालिटी है, आई एम श्योर कि ये आजकल के लोगों में काफी कुछ चेंजेस ला सकती है, बिकॉज लोग इतना बिजी अपनी लाइफ में कि वो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ इट कम्स फ्रॉम यू। मम्मी, कैन यू हियर आई मी? थिंक देयर इज नो इंटरनेट प्रॉब्लम एट योर एंड। नो नो नो, मेरे साइड से सब कुछ ठीक है, मुझे आप भी दिखाई दे रहे हो। हाँ, बिकॉज अभी ब्रेक हो गया था तुम्हारा ना बोलना, अच्छा, आवाज। ओके, मे बी नेटवर्क इशू होगा थोड़ा सा। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल पूरी दुनिया में लोग वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं। मैं खुद भी वुमेन एम्पावरमेंट की एडवोकेट हूँ। आपने भी मुझे बचपन से टुवर्ड्स दिस आपने मुझे बहुत एजुकेट किया है, यू टॉट मी। मुझे लगता है दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो जो जेन्युइन वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हैं बाय गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं जस्ट टू गेट देयर ओन पब्लिसिटी स्टंट, और मे बी जस्ट टू गेट अ टेम्पररी फेम एंड ऑल। ये दो टाइप के डिफरेंट लोगों के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? वुमेन एम्पावरमेंट अभी एक बहुत ज्वलंत डिस्कशन का मैटर है,
और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट रियलाइज हुआ कि सोसाइटी की बिल्कुल बेस जो है उसके ऊपर ध्यान दिया गया। फर्स्ट मैं बोलूंगी जो सिर्फ बात करते हैं काम नहीं करते हैं, तो आई एम थैंकफुल फॉर देम ऑल्सो, because at least by speaking and talking about women empowerment, they are airing this concept. Yeah. They are spreading this concept, so many more persons are getting aware of it. Youth is getting aware of it, and amongst them few are really interested in helping the women and coming in coming out to help the ladies. सेकंड ये है कि जो लोग रियली कर रहे हैं उनके लिए तो हम लोग आभार व्यक्त करते ही हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि ऐसा एक पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर आवर या पर्टिकुलर सीजन या पर्टिकुलर ग्रुप ही काम करेगा, नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट होता है घर से। घर से स्टार्ट होता है मदर से। मदर अपनी डॉटर को इतना बात कर सके, उसमें इतनी हिम्मत दे कि वो इवन इफ शी डज रॉन्ग, शी इज एबल टू टेल टू हर मदर, बिकॉज अभी का टाइम ऐसा है, माहौल ऐसा है। सो वो इतना आपको अपनी ओर से इतना कंफर्टेबल रखना होगा। कंफर्टेबल मीन्स उसमें इतना कॉन्फिडेंस देना होगा कि वो आप में अपना शेयर कर सके, और आपको अपनी, जैसा मैंने तुमको भी बोला था जब तुम छोटी थी, तुम्हें याद होगा वही बात की जो अपने पेरेंट्स, कोई बात हो जाए, कोई गलती हो जाए, मुझे बता देना, अल्टीमेटली हेल्प पेरेंट्स ही करेंगे। ये हमारी तुम्हारी टॉक हुई थी, याद है? वही मैं बोलती हूँ। दूसरा ये कि जो लड़के हैं घर के, उनको उनके पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि अपने घर की लेडीज का सम्मान करो, बाहर की लेडीज का सम्मान करो। घर से ही सीखेंगे तभी बाहर वो सम्मान करेंगे। तीसरा, हमारे आसपास जो नेबर्स हैं उन लेडीज को भी हमें अपलिफ्ट करने में मदद करना चाहिए। अगर हमारे इक्वल की हैं तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड बी एबल टू प्रेज देयर क्वालिटीज। वो एक कहावत है ना कि कंपटीशन फेयर होना चाहिए। उसकी जो स्टिक है उसको तोड़ दो, नहीं, you draw a bigger stick above that, means you work more hard and do better than her. This is fair competition, and praise for everybody's effort and their goodness. This is a fair competition. And for underprivileged, everybody should give, donate money, time, experience, whatever they can. They should do counseling. They should discuss with them their family problems, their health issues, their social issues, their monetary problems, and उनको ये हेल्प करना चाहिए, उनको ये गाइड करना चाहिए कि आप घर पे रहते हुए छोटे मोटे काम करके कैसे आप अपनी और अपने परिवार की, मेरे पास पेशेंट्स दिखाने आती हैं, अगर वो एजुकेटेड है और उनके इन लॉज उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं या हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहा है, तो मैं कहती हूँ कि भाई कम से कम 2-3 घंटे के लिए इसको घर से बाहर काम करने के लिए जाने दो। उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो मॉनेटरी गेन होता है, दूसरा लेडी के अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, उसकी लाइफस्टाइल डिसिप्लिन होती है, उसको सेल्फ अवेयरनेस होती है, और वो अपनी खुद की और अपने घर की बेटर देखभाल कर पाती है। नो, वेरी वेरी ट्रू। मुझे आज भी याद है कि आप और पापा मुझे हमेशा कहते थे कि नहीं, इसकी शादी इतनी जल्दी नहीं कराएंगे, सबसे पहले ये एजुकेट होगी, अपना करियर फिनिश करेगी, फिर जो करना है करेगी। सो आई थिंक आपके और पापा की वजह से आई एम व्हाट आई एम टुडे। आई मस्ट से दिस टू यू। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि आजकल की दुनिया में मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है, मैं आपके व्यूज जानना चाहती हूँ इस बारे में। एक औरत जब सक्सेसफुल होती है तो 100 औरतों में से मे बी 2 या 3 उनकी विक्ट्री के लिए खुश होती है, बाकी सब जेलसी, कॉम्पिटिशन, क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है।
बट इफ यू कंपेयर टू द मैन, तो हर एक बंदे के लिए बहुत सारे उसके फ्रेंड्स खुश होते हैं. लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इन टुडेज वर्ल्ड, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग ईच अदर्स विक्ट्री एज अ वुमन, it's quite less. So आपके क्या व्यूज है इस बारे में? अभी जस्ट नाउ मैंने अभी यही कहा था कि अगर आपके नेबरहुड में लेडीज हैं और वो उनको सक्सेसफुल हैं और वो कुछ अच्छा कर रही हैं, तो आप दिल खोल के प्रशंसा करिए. उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, वो और मोटिवेटेड होगी और आपकी उसके दिल में आपके लिए एक बड़ी इज्जत और जगह होगी. अगर आपको अपनी जगह बड़ी करनी है तो उसकी डंडी तोड़ने की बजाय आप एक बड़ी डंडी उसके ऊपर रखो. मतलब आप अपने सपोर्ट आप सिस्टम. ऐसे सपोर्ट नहीं, आप अपने काम ऐसे करो जो उससे बेटर हो. वेरी बट ट्रू. ऑलवेज सपोर्ट एंड प्रेज द अदर वन. मुझे लगता है appreciation is also very important in someone's successful life because it's motivate you more to grow. Mami, I'm enjoying this conversation with you, but before we end up this amazing conversation, I just would like to know one last question from you. If you would like to change one thing in this world, what it would be and why? अगर आपको लगता है कि इस पूरे दुनिया में एक चीज बदलने की जरूरत है, तो वो कौन सी चीज है और क्यों? इस दुनिया में बदलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं. एक चीज जो आपको लगता है प्रायोरिटी पर हो. प्रायोरिटी पर ये है कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन है, वापस उसको उसी प्रिमिटिव स्टेज पे लेने की जरूरत है जहां रियली वो ट्रूथफुल था, लव था लोगों के बीच में, अफेक्शन था, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड कम था. सुविधाएं तो सब थी, सब सामान हर समय मौजूद था, पर लोगों के सोचने का तरीका चेंज हो चुका है. मटीरियलिस्टिक एंड मशीन लाइक हो गए हैं. तो मुझे बस एक वो जो एक, बिकॉज हम ह्यूमन है, हम वी आर नॉट रोबोट. वी हैव हार्ट, वी हैव ब्रेन, वी हैव इमोशंस, वी हैव फीलिंग. हम खुश भी होते हैं, हम टूटते भी हैं और हमें सपोर्ट भी चाहिए. सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया भी जरूरी है, लेकिन एक वर्चुअल लाइफ एंड एक रियल लाइफ, दोनों की जरूरत है. वर्चुअल लाइफ रियल लाइफ पे ज्यादा हावी होती जा रही है. वो एक बैलेंस में रहे और एक पुराना जो हार्मनी एंड लव में जो रहते थे लोग, वो वापस आने की जरूरत है. आई थिंक ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपने दिया, और आई टोटली एग्री विथ यू. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. बट जाने के पहले, हमें इतने सारे व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड. मैं चाहती हूँ कि आप उन सबको अपनी तरफ से कोई मैसेज दीजिए, एंड इफ यू वुड लाइक टू से समथिंग टू देम. मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आप इतना प्यार दिया और हमारे लिए समय निकाला. क्योंकि समय, किसी आदमी का समय आपको मिल जाए, मतलब आपने बहुत बड़ी चीज पाली है आज के जमाने में. और मैं आपसे यही आपके लिए मैसेज है मेरा कि आप सब अपने दिल के हिसाब से जिंदगी जिएं और आप अपने पैशन को फॉलो करें, और आपको ईश्वर बहुत सफलता और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट प्रदान करे और आप बहुत अच्छी जिंदगी जिए. थैंक यू सो मच मम्मी. लिटरली आपने मुझे फिर से रिफ्रेश और रीमोटिवेट कर दिया. आई मस्ट से I really love you a lot, and I think today is a very big thing for me, and it's a great day for me because I'm doing live with you from South Africa and India, and your story was impactful. एक लास्ट लाइन के साथ मैं ये खत्म करूंगी. एक हमारे यहाँ भोपाल में पहले दुष्यंत कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे. उन्होंने लिखा था, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता. कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. Wow, that's so amazing. Thank He you was so a much, good mom. writer.
But I must say one thing before we finish, that मुझे पता है कि आप भी बहुत अच्छी पोएट्री करते हो. That's why मैंने बोला कि how do you manage this multitasking? आप इतने अच्छे पोएट हो, आप इतने अच्छे डॉक्टर हो, आप इतने अच्छे डिजाइनर हो. Before we go, Mami, I just want to ask you one thing. मैं जानती हूँ that you running your designer couture thing, like you're designing the outfit, that's your passion. If anybody wanted to contact you regarding your couture outfits or something, वो कहाँ आपको कैसे contact कर सकते हैं? आप कौन से social media platform पे available हो, या कौन सा जरिया है कि वो आप तक पहुंच सकते हैं? फेसबुक पे मैसेंजर पे, डायरेक्ट मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. और आपका फेसबुक का नाम वसुधा तिवारी, मुझे याद है. सो गाइज, आप लोग जो भी आउटफिट्स देखते हैं, ड्रेसेस देखते हैं, मुझे मेरे सारे शोज में वो सब कुछ मेरी मॉम ने डिजाइन किए हैं. अगर आप भी चाहते हैं वो खूबसूरत आउटफिट्स, तो प्लीज आप उन्हें कांटेक्ट कीजिए. थैंक यू वंस अगेन, मामी. लॉट्स ऑफ लव. आई विल सी यू लव सून. लव. बाय बाय. बाय.